Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is your doubt clearing session on Newton's laws of motion and kinematics. Actually, some students undergoing NEET and JEE training from various institutes of South Kashmir have asked a few problems, and we are going to discuss those problems today. Today will be your last lecture on Newton's laws of motion, and we will be concluding it today. Of course, we had suggested some problems from Erdope also. But since Erdope problems are much above the standard of NEET, and on the request of various NEET aspirants to start optics at the earliest, we are delaying the Erdope problems based on Newton's laws of motion. Inshallah, we will be discussing those simultaneously. Whenever we will get a brief span of time, we will be discussing Newton's laws of motion, selected problems based on Newton's laws of motion from Erdope also. Your next lecture, inshallah, will be on optics, geometrical optics or ray optics. Ray optics will be starting the topic right from 10th standard, and we will be taking it to the JEE advanced level. You people are advised, students are advised to go through the theory portion of ray optics so that you could understand the numerical problems very properly. We will be discussing optics, ray optics from two textbooks, NCERT and SC Verma both. First of all, we will be discussing 10th standard problems, level 1 problems. That will be followed by level 2 problems and finally level 3 problems. So that we will introduce inshallah in optics chapter, ray optics. So right now, let us discuss some NEET and JEE problems. These problems will bear a testimony to our sayings that you don't keep yourselves restricted to cramming NCERT questions. You can see what type of questions are asked. These are typical questions from NEET and JEE. So let us begin with question number 1. In this question, it has been mentioned that the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, while the lower half is rough. एक inclined plane हमारे पास दे रखा है ऐसे. इसकी जो इंक्लिनेशन है दैट इज थीटा. फिर क्या बोला गया है? द अपर पार्ट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ. ये जो आधा है इसका, जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की, ये जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेनस नेस्बस्तान वो चीज स्मूथ, यानी कि नेस्बस्तान चुन फ्रिक्शन नियब निशाने कुन नेस्ब पचपत ये पचपत फ्रिक्शन गसन स्टार्ट. दिस सरफेस इज रफ. What we have to calculate? What we have been asked. A body starting from top comes to rest at the bottom. कोई बॉडी यहां से चली है और यहां पे रुक गई है, अपने आप रुक गई है. बॉटम जो है इसका वहां पे दैट हैज कंप्लीटली स्टॉप. कब होगा ये? क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द लोअर हाफ इज गिवन बाय. क्वेश्चन एक बार फिर से अंडरस्टैंड करो आप लोग. अपर हाफ जो इंक्लाइंड प्लेन का है दैट इज परफेक्टली स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल. जो लोअर हाफ है दैट इज रफ, दैट मींस देयर इज सम फ्रिक्शन. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एक बॉडी हमने यहां से छोड़ी है, यहां तक वो एक्सेलरेट हो जाएगी बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट लगेगा वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा. लेकिन यहां के बाद क्या हुआ है? अदर हाफ में क्या हुआ है? नेक्स्ट हाफ जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ में चूंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करेगा. दैट विल रिटार्ड इट्स मोशन. इन दिस केस फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है. इन दिस केस फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप दिस, सो देयर विल बी सम डिसोलेशन. यहां के बाद बॉडी डिसोलेट होती है और इस पॉइंट पे आ जाती है. ठीक है, हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है लोअर हाफ का वो कितना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमें वो बोलना है. ऑप्शन जो इसमें दे रखे हैं दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा, mu is equal to cot theta, mu is equal to 2 cos theta, mu is equal to 2 tan theta. This question has been asked in NEET and JEE both exams. So let us begin. आप लोग क्वेश्चन नोट करो. क्वेश्चन नोट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से. ये क्वेश्चन अवेलेबल भी होगा. मैं इसकी डायग्राम अच्छे से बनाता हूं. देखो जी इसमें बात क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन आपको. चक्कर यही है, हम लोगों को पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है इसे. सपोज दिस एन इंक्लाइंड प्लेन,
ये इस तरह का मैंने इंक्लाइन प्लेन बनाया, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है। सपोज ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी। सपोज ये जो लेंथ ए बी है इसका आधा जो है यहां तक, सपोज दिस इज पॉइंट सी। एसी पोर्शन जो है इस इंक्लाइंड प्लेन का दैट इज फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। लेकिन जो सीबी पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा रख दिया गया है। सीबी पोर्शन में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की ये पे ब्लॉक अख यह वन यह ब्लॉक हसा बोथ अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन और पॉइंट बी पे यह रुक गया यहां इस तरह से। हमें बताना है जो इस सीबी पोर्शन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखो जी मैं पहले एसी पोर्शन को कंसीडर करता हूं, या सपोज इस तरह से मैं चलता हूं। ए बी लेंथ में पहले कंसीडर करूंगा, इसका चूंकि आधा हाफ जो है दैट इज फ्रिक्शनलेस, वन हाफ जो है इसका दैट इज फ्रिक्शनलेस, अनदर हाफ इज विद फ्रिक्शन। सो मैं एज्यूम करता हूं सपोज ये जो ए से सी तक की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, सपोज दिस इज एस, मैं इसको एस मानता हूं। चूंकि सी पोर्शन जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब है ये जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू एस। टोटल लेंथ जो ए बी की है दैट इज 2s। बॉडी यहां से चली है, पहुंचते पहुंचते बॉडी यहां पे पहुंचेगी, यहां तक बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। जो तक तम बॉडी स्पीड बढ़, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट लग रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, दैट विल एक्सेलरेट इट्स मोशन। यहां के बाद डिसलरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो क्वेश्चन में क्लियर दिया है कि यहां से बॉडी तभी रुकेगी, यहां पे बॉडी रुकी तेली ये तक एग्जाम ये पर डिसलरेशन लेस। अशुवन इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, या इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है जो सीबी पोर्शन है, सीबी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछता है। लेट अस वर्क इट आउट। मैं पहले एसी पोर्शन के लिए सपोज यहां पे कोई बॉडी है, यहां पे यही बॉडी है, ये तक बराबर फ्री बॉडी रहेगा, नहीं ठीक अलग बराबर फ्री बॉडी रहेगा। सपोज दिस इज पॉइंट पी, यहां पे ये इंक्लिनेशन है थीटा, यहां पे ब्लॉक है, मैं एसी पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं। सपोज दिस इज ए, दिस इज सी, वो तो सिर्फ थी। यहां पे क्या होगा भाई, इसका जो कंपोनेंट होगा वेट का, इसका वेट mg डाउनवर्ड्स होगा। यहां से जो कंपोनेंट होगा वेट का इस तरफ अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, दैट विल बी mg sin थीटा। वो मैंने बताया है पहले कैसे होगा। यहां से जो फोर्स होगा दैट विल बी mg cos थीटा, और इस तरफ जो होगी दैट विल बी नॉर्मल डायरेक्शन m, और कोई फोर्स नहीं। जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन होगी, मैं लिखूंगा यहां पे फॉर एसी पोर्शन, फॉर एसी पोर्शन जो कि फ्रिक्शनलेस है। एक्सेलरेशन जो ब्लॉक की होगी mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा। या मैं यहां पे डायरेक्टली g को ही रिजॉल्व कर सकता हूं कंपोनेंट्स में, वैसा भी कोई चक्कर नहीं। अब मेरे पास जो इस ब्लॉक के लिए जो एक्सेलरेशन है एसी पोर्शन के लिए, वो मेरे पास आ गई। मैं इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन करूंगा मैं अप्लाई काइनेमेटिक्स की। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं ये हॉप कंसिडर कर रहा हूं, फिर से इसमें नोट करना, एसी पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूं। आई एम टेकिंग एसी पोर्शन इनटू कंसिडरेशन। यहां पे फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो पॉइंट सी पे होगी। मैं इस तरह से लिखूंगा vc स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, दैट विल बी 0 इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन के बदले में डाल दूंगा g sin थीटा, इंटू हो गया इसको s। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ c जो है उसका स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 2g sin थीटा इंटू s। इसको मैं सेपरेट रखूंगा बॉक्स में। यह आ गया मेरे पास कौन सा पोर्शन, एसी पोर्शन के लिए। यहां पे मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं vc स्क्वायर इज इक्वल टू 2g sin थीटा इंटू s।
मैं काइनेमेटिक इक्वेशन ही अप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं दे रखा है। टाइम इंडिपेंडेंट जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, इसीलिए मैं वही इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। जो एसी के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी वो सीबी के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलो सीबी पे, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर सीबी पोर्शन या सीबी पार्ट। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बिल्कुल यही होगी, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। क्योंकि यहां से यहां तक जो ये सरफेस है इट इज फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, इट इज ए सरफेस विथ फ्रिक्शन। सो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू एन। सो देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू एन। स्मॉल एफ में इसको लिख देता हूं, स्मॉल एफ भी इस पे ऐड हो जाएगा। देखो अब यहां पे इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास है दैट इज mg cos थीटा, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स F है दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। नेट फोर्स जो इस ब्लॉक पे लगेगा, जो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगा दैट विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू एन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। मैं डायरेक्टली न्यूटन सेकंड, सॉरी मैं पहले या इस तरह से आप देखो, मैं न्यूटन सेकंड लॉ यूज करूंगा यहां पे। देखो जी, अब मुझे सीबी पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन फॉर सीबी ये मुझे पता नहीं है। एक्सेलरेशन फॉर सीबी पोर्शन दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स ऑन सीबी डिवाइडेड बाय मास, यानी कि एफ नेट कहां? सीबी डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक एम। एफ नेट जो यहां पे है दैट इज mg sin थीटा माइनस म्यू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय एम। एम यहां से कॉमन आएगा, वो इस यहां से भी कॉमन आएगा, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम अलोंग सीबी फॉर सीबी पोर्शन दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। एक्सेलरेशन फॉर सीबी पोर्शन, ये ऑफ कोर्स दिस विल बी डिसलेशन, ये डिसलेशन ही होगी। मैं लिखता हूं इसको, जो एक्सेलरेशन होगी फॉर सीबी पोर्शन दैट विल बी इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू टाइम्स cos थीटा, सॉरी म्यू cos थीटा। जी भी है इसके साथ, मैं अलग से जी में भूल गया यहां पे, मैंने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जी। ये आ गई मेरे पास एक्सेलरेशन जो सीबी पार्ट के लिए। अब आगे चलो, फिर से वही इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। वीबी स्क्वायर माइनस वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन फॉर सीबी इनटू हो गया एस, बिकॉज दिस पोर्शन सी इज द मिड पॉइंट। सो ये पोर्शन अगर मैंने एस माना ये भी एस ही है। वीबी स्क्वायर में लिख रहा हूं यहां पे, सॉरी वीसी स्क्वायर। वीबी स्क्वायर जो यहां पे चूंकि ब्लॉक रुक गया है फाइनली, सो इट विल बी 0 माइनस वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स what is acceleration along CB? That is g sin theta minus mu g cos theta, यानी कि मैं लिख रहा हूं माइनस वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g sin थीटा माइनस ट्वाइस म्यू जी cos थीटा। मुझे पता है वीसी स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले ही। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation number 2। मैं इक्वेशन 1 से वीसी स्क्वायर का वैल्यू उठाऊंगा, वो यहां पे डाल दूंगा। मैं वीसी स्क्वायर के बदले में लिखूंगा, माइनस साइन तो है ही, मैं लिखूंगा माइनस पहले वीसी स्क्वायर के बदले है 2g साइन थीटा इंटू एस। सॉरी यहां पे मैं भूल गया हूं, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। मैंने ए का वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैंने नहीं लिखा, एस भी है यहां पे इंटू एस है, यहां पे एस भी है इंटू एस। सॉरी इस पर ब्रैकेट डाल दो, इसमें एस यहां। सो मैं लिख रहा हूं वीसी स्क्वायर, इसका वैल्यू मैं यहां पे डाल रहा हूं, इसमें माइनस तो है ही यहां पे। वीसी स्क्वायर के बदले 2g साइन थीटा इंटू एस, 2g साइन थीटा इंटू एस इज इक्वल 2g से ये
अब देखो एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल आल्सो इक्वल टू 2g sin थीटा इंटू एस माइनस 2s म्यू जी कॉस थीटा। कुछ नहीं किया मैंने डीसी स्क्वायर का वैल्यू यहां पे डाल दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। हमें म्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। 2g sin थीटा जब इस तरफ आ जाएगा तो यहां पे बनेगा ये 2g sin थीटा इंटू एस, 2g sin थीटा इंटू एस, यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव बन जाएगा, सो 2 + 4 दैट विल बी -4g sin थीटा इंटू एस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2s म्यू जी कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसल, जी और जी भी कैंसल, सो हम ये एस और एस भी कैंसल, हमारे पास आएगा 4 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू कॉस थीटा। इस तरह से लिख रहा हूं मैं इसको 4/2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, 2 1 2 2 यानी कि 2 टाइम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा यानी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो जो भी ऑप्शन बैठेगा इसमें म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा दैट विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन मैंने पहले ही लिखे थे इसमें देखो क्या बात है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, उसका आधा पोर्शन हाफ द लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन दैट इज फ्रिक्शनलेस एंड रिमेनिंग पार्ट दैट इज विद फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन के साथ उसमें फ्रिक्शन भी है कुछ ना कुछ। बॉडी यहां से छोड़ी गई है, यहां तक चली बॉडी, उसके बाद डिसलरेशन स्टार्ट हो गई, फाइनली बॉडी यहां पे खुद ही रुक गई। ये नहीं कि ग्राउंड के साथ टकराई और रुक गई, खुद ही रुक गई। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहां पे वेलोसिटी देखी, पहले एक्सेलरेशन देखी इस ब्लॉक की, फिर यहां पे हमने वेलोसिटी देखी। जब हमें वेलोसिटी यहां पे पता थी, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने डाल दिया, तो हमने v स्क्वायर जो यहां से vc स्क्वायर जो इसकी वेलोसिटी थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, या उसको हमने इन टर्म्स ऑफ g sin थीटा cos थीटा म्यू उनके टर्म्स में लिख दिया। g तो यूनिवर्स हमें पता ही है, सबको पता ही होता है, अगर g की टर्म्स में आंसर आ भी जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप देखो यहां पे आंसर जो है वो सिर्फ क्योंकि सिर्फ थीटा दिया गया था, आंसर भी थीटा की टर्म्स में ही आ रहा है। सो बाकी जो सारी चीजें थी वो हमको एलिमिनेट करनी थी। इसमें मैथमेटिक्स का भी अच्छा खासा तगड़ा यूज है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये नीट और जेई दोनों एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम पूछी गई है, क्योंकि जेई प्रॉब्लम है, रिपीट भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी खासी प्रॉब्लम है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं पहले बंद करता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं। प्लीज वेट। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये भी नीट और जेई दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, ए मैन इन ए कार एट ए लोकेशन क्यू ऑन ए स्ट्रेट हाईवे इज मूविंग विद स्पीड v। ये टच पूछता नफर, यहां पे कोई आदमी कार में बैठा है, ये हाईवे है जो क्यू एम है, दिस इज ए हाईवे, ये एक हाईवे है, हाईवे पे कोई आदमी चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज v, इसकी स्पीड यहां पे v है। ठीक है, he decides to reach a point P in the field at a distance d from the highway। ये इसका फील्ड है, सपोज ये सारा है, सपोज दिस इज फील्ड। इसको फील्ड में, ये जो फील्ड के अलग रोड जा रहा है, इस आदमी को जो यहां कार में ट्रेवल कर रहा है, इसको इस पॉइंट P पे पहुंचना है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ दैट ऑफ ऑन द हाईवे। जो कार की स्पीड है ये तो नेचुरल है, इट इज कॉमन सेंस। फील्ड में जो स्पीड होगी आदमी की वो रोड से तो कम ही होगी। इसने क्वेश्चन में उधर से ही दे रखा है कि जो फील्ड में इसकी स्पीड है, सपोज ये यहां से निकला, यहां से इसकी स्पीड अगर यहां पे 50 किलोमीटर पर आवर है, वहां पे उस पे उसका आधा है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां 100 किलोमीटर पर आवर है, वहां 50 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां पे 20 है, फील्ड में इसकी स्पीड 10, यानी कि जो रोड पे स्पीड है उसका आधा, उसकी आधी स्पीड ये फील्ड में गेन कर सकता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस rm सो दैट
द टाइम टेकन टू रीच पी इज मिनिमम। हमें यह डिस्टेंस बतानी है आरएम, यानी कि इस आदमी को इस हाईवे पे कौन से पॉइंट पे टर्न लेनी है, एमएस का नियर, ये कहां पे अपनी गाड़ी मोड़ेगा ताकि ये कम से कम टाइम में इस पॉइंट पी पे पहुंच जाए। क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड कर लो फिर से। कोई आदमी यहां गाड़ी में चल रहा है, ये हाईवे है, दिस इज हाईवे, ये वाला हाईवे है। मैं इसकी अच्छी डायग्राम बनाता हूं, आप रुक जाओ, मैं डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाता हूं इसको, आप रुक जाओ थोड़ी देर। क्वेश्चन मेरे पास है, किसी ने भेजा है, किसी बच्चे ने, मैं दिखाई देता हूं, कोई टेंशन नहीं है इसकी। डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाता हूं मैं। डायग्राम जो मेरे पास आई है, डायग्राम ने दिया है कि ये कोई रोड है, दिस इज हाईवे। मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एम है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज आर, और आदमी यहां क्यों पॉइंट से निकला है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस आर एम, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट में क्वेश्चन फिर से देखता हूं, मैं देखता हूं डाटा क्या क्या दे रखा है मेरे पास। इसमें जो डाटा हमारे पास है, डाटा जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है इसमें, इट इज डी। आदमी यहां पे चल रहा है गाड़ी में, गाइड में पकड़ रखा था, इस तरह से बात है, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं पहले। ये क्यू आर एम जो है, ये एक हाईवे है, और ये जो बाकी चीज है यहां से, ये एक फील्ड सपोज है, फील्ड खा, ये कोई खेत है। आदमी यहां से निकलना चाहता है, इसको इस पॉइंट पे पहुंचना है, लेकिन दे क्या रखा है, जो फील्ड में स्पीड है, ये भी दे रखा है कि आदमी यहां से, जो यहां इसकी स्पीड है हाईवे पे, दैट इज v, और जो रोड इसमें खेत में इसकी स्पीड है, दैट इज v/2। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि जो खेत में स्पीड है, दैट इज हाफ द स्पीड दैट ऑन द रोड, ठीक है। ये आदमी अब चल रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये आदमी इस पॉइंट एम से पहले कितना लेफ्ट टर्न लेगा ताकि ये कम से कम टाइम में पॉइंट पी पर पहुंचे। वी हैव टू मिनिमाइज द टाइम। पूछो, जब ये आदमी निकलेगा, सपोज ये यहां से निकला, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर लेफ्ट टर्न यहां पे पहुंचे, सपोज इसको 1 घंटा लग गया। अब सपोज इसने डायरेक्ट पाथ ली, ये वाली हाइपोटेन्यूज इसका, वहां से सपोज इसको 50 मिनट लगे। सपोज ये यहां पे निकला, यहां से इसको 1.5 घंटा लगा। हमें वही क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि कहां से ये आदमी मुड़ेगा, एम पॉइंट से पहले कितना मुड़ेगा ये, जो यहां पे ये टर्निंग है, राइट एंगल टर्निंग जो यहां पे है 90 डिग्री पे जो ये टर्निंग है, उससे पहले आदमी कितना मुड़ेगा ताकि ये कम से कम टाइम में पॉइंट पी पे पहुंच जाए। मिनिमम टाइम उस मसले से पॉइंट खास पर पॉइंट पी एस्पेक्ट इसे करो डिस्कस, ठीक है। हम मानते हैं सपोज ये पॉइंट आर पे ही मुड़ गया, सपोज आर इज एन आर्बिट्री पॉइंट, हम इसको यहां चूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया भी है। ये बेसिकली एरोफ की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1.16 या 1.17। उसमें हाफ नहीं दिया है, उसमें दिया है उसने ये ईटा टाइम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑन द रोड। आप देख लो उसमें एरोफ में, एक बार चेक करो, मैंने इसका सोल्यूशन भी दिखाया है, लेकिन मैंने वहां पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करूंगा। देखो जी, हम मानते हैं सपोज ये आदमी जो है, ये इस टर्निंग, इस पॉइंट एम से पहले एक्स डिस्टेंस ही मुड़ गया लेफ्ट की तरफ, इसने ये पाथ ले ली सपोज, ठीक है। हमें यही एक्स निकालना है, हमें एमआर निकालना है। एमआर किस तरह होना चाहिए, सो दैट द टाइम इज मिनिमम, टाइम कम से कम लगना चाहिए। टोटल लेंथ जो यहां से यहां तक है, हाईवे की लेंथ, वो मैं मानता हूं सपोज दिस इज एल, कैपिटल एल या स्मॉल एल मान लो, इसमें क्या दिक्कत है। अब जो क्यू से आर की डिस्टेंस है, दिस विल बी इक्वल टू एल माइनस एक्स। मैं सारे डिस्टेंसेस पहले कैलकुलेट करूंगा,
ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस एक्स है। इसका मतलब है जो पी आर डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, ये वाली डिस्टेंस पी आर या आर पी, दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने माना कि आदमी आर पॉइंट पे ही लेफ्ट टर्न लेगा, ठीक है। कम से कम टाइम में पहुंचने के लिए देखो, आदमी को पहले क्यू आर डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, उसके बाद इसी आदमी को आरपी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। मैं अज्यूम करता हूं, लेट द टाइम दैट ही टेक्स टू कवर क्यू आर डिस्टेंस, लेट दैट बी टी क्यू आर। और जो इसको आर क्यू डिस्टेंस, सॉरी आरपी डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो इसको टाइम लगा, वो मैं मानता हूं टी आरपी। टोटल टाइम जो इसको लगा वो मैं मानता हूं टी। सपोज मैं इसको थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं कंसिडर है बॉडी ऑफ मास इतना दिस दिस दैट, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। आपको ये पता है, आपको याद नहीं करना है, आपको सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि इसने कौन सी, सर ने कहां पे कौन सी टर्म, कौन सा क्या चीज यूज किया है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए मैं टाइम को भी वही नाम दे रहा हूं जो डिस्टेंस का है। मैं सफिक्स लगा देता हूं डिस्टेंस का। जो क्यूआर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम लगा, मैं उसको टी क्यूआर मानता हूं। जो आरपी डिस्टेंस के लिए लगा, वो मैं मानता हूं आरपी टी आरपी। टोटल टाइम में मानता हूं टी। इसका मतलब है टी जो होगा हमारे पास, टोटल टाइम टी, दैट विल बी इक्वल टू टी क्यूआर प्लस टी आरपी। हमें ये टाइम कम से कम चाहिए। वी नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टाइम। एज कैसी टाइम ऑफ मिनिमम, वी हैव टू मिनिमाइज दिस टाइम। अब आ जाओ इस पे टी क्यू आर पे, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। देखो जी, टी क्यू आर जो टाइम है वो हमें लगा है क्यू आर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। क्यू आर डिस्टेंस जो है वो हाईवे की डिस्टेंस है, वो हाईवे का पोर्शन है। हाईवे पे पोर्शन, हाईवे पे गाड़ी की स्पीड भी है, यानी कि हमें वेलोसिटी भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है। मैं डायरेक्टली करता हूं एस इज इक्वल टू वीटी में अप्लाई करता हूं, ठीक है, इसमें परेशानी कोई नहीं है। एस के बदले में लिख दो यहां पे, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं। सपोज इस इक्वेशन से मेरे पास आएगा टी इज इक्वल टू एस बाई वी। यूजिंग टी इज इक्वल टू एस बाई वी फॉर क्यू आर, क्यू आर के लिए मैं यूज करूंगा, तो मेरे पास आएगा जो डिस्टेंस क्यू आर है, यहां पे मैंने उसको एल माइनस एक्स माना है। एल माइनस एक्स, सॉरी मुझे टी चाहिए पहले, टी क्यू आर दैट विल इक्वल टू डिस्टेंस बाई वी। डिस्टेंस मेरे पास है क्यू आर डिवाइड बाई वेलोसिटी जो हाईवे पे है वो भी है, यानी कि दैट विल बी इक्वल क्यू आर के बदले में लिख सकता हूं एल माइनस एक्स डिवाइड बाई वी। कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी तरह जो वेलोसिटी इस गाड़ी की है इस वाले पोर्शन पे, खेत में जब ये जा रहा है, इस वाले पोर्शन के लिए वेलोसिटी है v बाई 2। नेक्स्ट ना वेलोसिटी, आधी वेलोसिटी के साथ चल सकता है ये खेत में, तो वही मैंने v बाई 2 रखा। अब मुझे चाहिए यहां पे टीआरपी। टीआरपी किसके बराबर होगा, डिस्टेंस दैट इज आरपी डिवाइड बाई स्पीड जो उसके है आरपी पोर्शन के लिए, खेत में जो स्पीड है दैट इज v बाई 2। यानी कि ये मेरे पास आएगा 2 टाइम्स आरपी के बदले, आरपी के बदले रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया यहां पे नीचे v, ये आ गया मेरे पास टीआरपी। अब जो टोटल टाइम है मेरे पास, टोटल टाइम जो मेरे पास है टी, वो मैंने पहले ही बोल रखा है दैट इज टी क्यू आर प्लस टी आरपी, टी क्यू आर प्लस टी आरपी। जिस टाइम से मैं क्यू आर डिस्टेंस करने सो तो भाई उस आरपी डिस्टेंस को उस टाइम स्विच बोलिया कर, दैट विल बी इक्वल टू टी क्यू आर दैट इज एल माइनस एक्स डिवाइड बाई वी प्लस टी आरपी दैट इज 2 टाइम्स रूट के बदले में लिख देता हूं डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइड बाई वी। ठीक है जी, अब आ जाओ टी जो है दैट विल बी इक्वल 1/v, तो कॉमन आएगा, यहां भी v है यहां भी v है, इसको कॉमन ले लो, अंदर हमारे पास बचेगा एल माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स
डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 फॉर टी हमें यही टाइम कम से कम टाइम चाहिए अच्छु कम खोत कम टाइम वातन पॉइंट पी एस पे फॉर टी टू बी मिनिमम कम से कम टाइम के लिए क्या होना चाहिए फॉर मिनिमम टाइम dt by dx must be equal to 0. So differentiating this equation with respect to time, sorry, with respect to x, हमारे पास क्या आएगा dt divided by dx, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे x ही है, एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कुछ भी कर सकते हैं. आप लोगों ने दे रखा होगा dx by dt होती है वेलोसिटी, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मैं टाइम को ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं बिकॉज टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन x. हमें x ही चूज करना है. एक्शन पाई ईशा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, इट इज अननोन, ये वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक बार इसकी वैल्यू मिनिमम टाइम के लिए फिक्स है, फिर फिक्स है. अभी तो मैं इसको यहां भी फिक्स कर सकता हूं, यहां भी फिक्स कर सकता हूं, जहां मेरी मर्जी है वहां फिक्स कर सकता हूं, उसमें दिक्कत क्या है. सो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका है चैप्टर 11th क्लास में, वहां ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. अगर नहीं हो तो वो बदकिस्मती. इज इक्वल टू 1/v, अंदर क्या बचेगा L, सिंस L इज कांस्टेंट, ये लेंथ जो है कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस x की विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 dx by dx प्लस 2 इंटू, यहां पे क्या है, जब d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर नीचे आता है, यानी कि 1/2 d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर बचेगा -1/2 बिकॉज 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2. इंटरनल डिफरेंशिएशन d स्क्वायर इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट, यहां से यहां तक लेंगे दैट इज कांस्टेंट, d स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2x into 2x dt by dx that is equal to 1/d into 2 और 2 cancel, that is equal to -1 plus 2x. ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 है, मैं इसको नीचे लाता हूं रूट में, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. फॉर टी टू बी मिनिमम, फॉर टाइम टू बी मिनिमम, dt by dx शुड बी इक्वल टू 0. dt by dx इसका आंसर 0 बराबर है, वही मैं लिख रहा हूं. फॉर टाइम टू बी मिनिमम dt by dx शुड बी इक्वल टू 0. dt by dx मैंने कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि 1/v इंटू -1 plus 2x divided by root under d square plus x square, that should be equal to 0. ये 0 कब होगा, या तो v इन्फिनिटी होना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल. इसका मतलब है -1 should be equal to -2x divided by root under d square plus x square. माइनस माइनस कैंसल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, हमारे पास आएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. मैं अब लिख नहीं रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं दोनों साइड से, तो यहां पे हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. और मैं लिखता हूं स्क्वायरिंग, मैंने दोनों साइड से की, मैंने लिखा नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ी चीजों में लिखना जान के. और यहां पे मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर के पास 3x स्क्वायर आएगा, इस तरफ जब आएगा माइनस बन जाएगा तो यहां पे 3x स्क्वायर बन जाएगा. हमें x ही चाहिए, एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है दैट इज डी स्क्वायर बाई 3, जो x है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर 3, यानी कि x शुड बी इक्वल टू d डिवाइड बाई रूट 3. आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है वो आप देखो. अगर ये आदमी इस पॉइंट से पहले d बाई रूट 3, यानी कि अगर ये 10 मीटर, अगर ये 10 बाई रूट 3 मीटर डिस्टेंस पहले ही मोड़ लेगा लेफ्ट की तरफ, तो ये कम से कम टाइम में पहुंच जाएगा, ये कम से कम टाइम में पहुंच जाएगा. दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इरोडोव की प्रॉब्लम है अच्छी खासी. तो मैं फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूं, तब तक बंद करता हूं. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 नाउ. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3. नीट जेई में आ चुका है क्वेश्चन. नीट का मुझे पता नहीं, लेकिन जेई में कंफर्म आ चुका है. नीट में पूछा जा सकता है. पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश. ठीक है, सपोज 2 कार्स है हमारे पास,
सपोज दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। ये सपोज रेस रोड है कोई। अब पूछ कर है, मैंने दे के रखा है, देन कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी, यानी कि अगर टी बी को सपोज टाइम टी डैश लगा या टी बी लगा, इसको जो टाइम लगा फिर दैट विल बी टी बी माइनस टी। अगर हम घंटे लो हम इसको घंटे माइनस टी क्वेश्चन में बोलेंगे टाइम टी लेस देन कार। फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचने से, फिनिशिंग पॉइंट पे जब ये पहुंचे तो जो ए को टाइम लगा दैट इज टी बी माइनस टी लगा उसको, उससे कम टाइम लगा इसको। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एंड passes द फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन कार b। अगर सपोज ये vb स्पीड से इस पॉइंट को क्रॉस किया है इसने, तो ये वाला जो है इसने vb प्लस v स्पीड से क्रॉस किया है फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली। दोनों गाड़ियां जो है, पहली वाली गाड़ी की जो पहली गाड़ी है उसकी, उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज a1, और जो गाड़ी नंबर 2 है यानी कि कार बी है उसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज a2। ठीक है, हमें बताना है v किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ a1 a2 एंड t। ऑप्शन दे रखा है a1 प्लस a2 बाई 2, रूट अंडर a1 a2 इंटू टी, टी रूट से बाहर है, रूट अंडर ट्वाइस a1 a2 इंटू टी, डी पार्ट में बोल रहा है ट्वाइस a1 a2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 इंटू टी। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, वी हैव टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम, मैंने बार बार बोला फिजिक्स में अच्छी खासी डायग्राम बनाओ, ये नहीं कि नीट एंड क्लीन बन जाए, लेकिन सिमेट्रिक ठीक ठाक होना चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए टर्म्स, क्या क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। मैं सबसे पहले डायग्राम ही बनाता हूं इसकी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ, किसी ने भेजा है। Suppose we have two cars. This is car A and this is car B. Jim cars, both the cars are on a race track, on a race road. They are racing. Suppose this is the finishing point. At a distance, suppose 10 kilometer, 15 kilometer, whatever it is. Now the question tells us, this is car B. जो गाड़ी B है उसको इससे ज्यादा टाइम लगा है, यानी कि ए गाड़ी को बी से कम टाइम लगा है। कितना कम टाइम लगा है, टी। मैं मानता हूं सपोज ये दोनों गाड़ियां यहां पे पहुंच गई, फिनिशिंग पॉइंट ये है, ये फिनिशिंग पॉइंट, दोनों गाड़ियों के लिए फिनिशिंग पॉइंट सेम दूरी पे ही होगा। ये एक ही पॉइंट से चलेंगी भी, एक ही डिस्टेंस इनको तय भी करनी है, तभी डिसाइड हो पाएगा कि विनर कौन है और लूजर कौन है। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। मैं क्वेश्चन देख रहा हूं फिर से एक बार, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे है, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। सपोज मैं मानता हूं कि बी को टाइम टी बी लगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर देंगे, यानी कि रेस स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं इसको टाइम टी बी लगा। इस तरह पे आ रही, यहां पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अगर इसको टाइम टी बी लगा, जो ए गाड़ी है, ए गाड़ी को इससे कम टाइम लगा है, कितना कम लगा है, टाइम टी, यानी कि जो इसको टाइम लगेगा यहां पे दैट इज टी बी माइनस टी। ठीक है, अब और एक चीज इसमें दे रखी है, एंड passes द फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ b। सपोज कि यहां पे मैं मानता हूं इसकी स्पीड vb थी जब ये फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ए की स्पीड भी ज्यादा दे रखी है, कितनी ज्यादा दे रखी है, vb से v स्पीड एक्स्ट्रा चला है, यानी कि जो गाड़ी ए की स्पीड है वो ज्यादा है, तभी तो टाइम कम लगेगा जब स्पीड ज्यादा होगी, या टाइम कम तभी लगा जब स्पीड ज्यादा हो सकती है। इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है इसमें, बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी जीरो है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज आल्सो जीरो।
फाइंड बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज a1 एंड a2। जो गाड़ी ए की एक्सेलरेशन है इसकी दैट इज a1, गिवन है उधर सी। जो गाड़ी बी की एक्सेलरेशन दैट इज a2, ये भी दे रखा है। हमें a1, a2 और t के बीच में रिलेशन निकालनी है, यानी कि वेलोसिटी जो हमारे पास है v हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ a1, a2 एंड t। ये वाला t, ये t भी नहीं t, ठीक है। क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करो। गाड़ियां चल रही है, रेस कर रही है गाड़ियां, ए गाड़ी और बी गाड़ी। बी गाड़ी जो टाइम ले रही है फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने में, ए को उससे कम टाइम लगा है। कितना कम टाइम लगा है? टी। वो टी मिनट से, टी आवर से, वो हमें पता नहीं है, लेकिन टी टाइम कम लगा है, ठीक है। उसी तरह जो वेलोसिटी ए गाड़ी की है एट फिनिशिंग पॉइंट, वो वेलोसिटी बी की गाड़ी से v एक्स्ट्रा है। v पता नहीं है 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ नहीं पता। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन गाड़ी ए की a1 दे रखी है, गाड़ी बी की a2 दे रखी है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी v, ये वाली वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ a1, a2 एंड t, क्योंकि यही तीन क्वांटिटीज दे रखी है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर कार ए, गाड़ी ए के लिए मैं लिखता हूं फॉर ए इनिशियल स्पीड 0, ua is equal to 0, ub is also equal to 0, दे रखा है सी, बोथ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मैं लिखता हूं ये जो vb है, मुझे यहां पे दो वेरिएबल्स आ गए। एक वेरिएबल मेरे पास आ गया vb, दूसरा वेरिएबल मेरे पास आ गया tb। अगर ये दो वेरिएबल्स मेरे पास एलिमिनेट हो जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा आंसर v, मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि v मुझे निकालना है। यानी कि तीन वेरिएबल्स है हमारे पास, दोनों ही तीन है, सॉरी तीन वेरिएबल्स है हमारे पास। तीन वेरिएबल्स को निकालने के लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए मिनिमम, वो निकालते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी हमें ठीक लगेगा वो करेंगे और आंसर पाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? मैं लिखता हूं सबसे पहले फॉर गाड़ी है v फाइनल, v इज इक्वल टू u प्लस at अप्लाई करूंगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई इसकी गाड़ी की? दैट इज vb प्लस v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मैं नहीं लिख रहा हूं, a1 लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन गाड़ी ए की, टाइम कितना लगा है भाई? दैट इज tb माइनस t। इक्वेशन 1, तीन इक्वेशन चाहिए मुझे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह देखो, इक्वेशन मैंने ये वाली क्यों लिखी? क्योंकि इसमें vb, v और t तीन वेरिएबल्स आ गए इसमें, इसलिए मैंने यही इक्वेशन यूज की। अब आ जाओ दूसरी गाड़ी पे। दूसरी गाड़ी के लिए फाइनल वेलोसिटी vb, यानी कि vb ये लिख रहा हूं मैं फॉर b, vb इज इक्वल टू u, इसके लिए भी 0 है, ub दैट इज 0। मैं लिखता हूं सीधे यहां पे a2 इंटू tb, दूसरी इक्वेशन v इज इक्वल टू ut यूज करके, ये इक्वेशन 2 है मेरे पास। आ गई दो इक्वेशन हमारे पास, लेकिन तीन चाहिए मुझे। इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन मस्ट बी 3। क्या करेंगे? देखो जी, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए ने, वही डिस्टेंस बी ने भी ट्रेवल किया है। रियज द स्टेडी लेंथ ऑफ द ट्रैक्स मस्ट बी सेम, तभी तो रेस हो पाएगी। ये नहीं कि एक को 2 किलोमीटर दे देंगे, दूसरे को 5। लेंथ ऑफ द रेस, लेंथ ऑफ द रेस रोड दैट शुड बी सेम फॉर बोथ द कंटेस्टेंट्स। यानी कि जो ए के लिए डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी के लिए। मैं लिखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए दैट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख सकता हूं ut कितना है मेरे पास? 0 है, यानी कि पहली टर्म वैनिश हो जाएगी, दैट इज 1/2 a1 इंटू जो ए को टाइम लगा है दैट इज tb माइनस t का होल स्क्वायर। अगर मैं ये इक्वेशन थर्ड मानता हूं, यहां पर मेरे पास और एक वेरिएबल आ गया ऐसे, ठीक है। मुझे ऐसे भी पहले हटाना है। मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू 1/2 a1 इंटू tb माइनस t का होल स्क्वायर। इसी तरह से गाड़ी बी ने भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। मैं सीधे लिखता हूं s इज इक्वल, ये फॉर कार ए और फॉर कार बी में लिखा है, s विल बी इक्वल टू 1/2 a2 इंटू tb स्क्वायर, क्योंकि गाड़ी बी ने जो टाइम लिया है दैट इज tb, और जो इसने एक्सेलरेशन दे रखी है अपनी दैट इज a2। क्योंकि जो गाड़ी इसने ए ने ट्रेवल डिस्टेंस की वही बी ने भी ट्रेवल की, इसका मतलब है
1/2 इंटू टी बी माइनस टी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल 1/2 A2 इंटू टी बी का स्क्वायर। या मैं यहां लिख सकता हूं A1, क्योंकि 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं A1 इंटू टी बी माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A2 इंटू टी बी का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। फिजिक्स तो इतनी ही थी इसमें, बाकी रेस्ट इज मैथमेटिक्स, बाकी मैथ है। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एलिमिनेट करेंगे, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग इन दिस प्रॉब्लम। वही बहुत चैलेंजिंग है इस क्वेश्चन में। मैं कोशिश करता हूं। देखो जी, हमें तीन वेरिएबल्स में इक्वेशन चाहिए। वी बी एलिमिनेट करना है, टी बी एलिमिनेट करना है, ठीक है। और हमारे पास जो वेरिएबल तीसरा है दैट इज वी, ये वी। मैं सबसे पहले इसको वी बी को एलिमिनेट करूंगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो जी, जब मैं इस वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, जब मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा वी बी प्लस वी, लेफ्ट हैंड साइड को मैं कर रहा हूं, माइनस वी बी इज इक्वल A1 टी बी माइनस A1 टी, यहां पे माइनस A2 टी बी। वी बी गेट्स कैंसल, यानी कि V जो है दैट विल बी इक्वल A1 माइनस A2 इंटू टी बी। चूंकि यहां पे टी बी कॉमन आएगा, माइनस आएगा A1 इंटू टी, ठीक है। हमारे पास दो ही वेरिएबल्स इसमें आ गई, वी बी जो था हमारे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 4 मान के चलता हूं, ठीक है जी। अब इस पे आ जाओ, मैं इसको दोनों साइड से रूट ले रहा हूं, मैं टीबी यहां से निकालूंगा, यहां से टीबी निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। टीबी कैसे निकलेगा, रूट लेना पड़ेगा, यानी कि रूट अंडर A1 इंटू टीबी माइनस टी इज इक्वल टू रूट अंडर A2 इंटू टीबी, ठीक है। मैं लिख सकता हूं यहां पे रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2 या टीबी सर, या टीबी सर, नेवर माइनस टीबी इज इक्वल टू, यहां पे बचेगा मेरे पास रूट अंडर A1 माइनस टी। मैं उसको यहां से माइनस आएगा यहां पे, मैं यहां पे इसको प्लस लिखता हूं, रूट अंडर A1 इंटू टी। फिर से इसको देखो एक बार, रूट अंडर A1 इंटू टीबी, रूट अंडर A1 इंटू टीबी, रूट अंडर A2 इंटू टीबी, यहां प्लस है, इस तरफ माइनस आएगा, वही माइनस मैंने लिखा, रूट अंडर A2 इंटू टीबी, रूट अंडर A1 इंटू टी, वो यहां पे माइनस था, यहां पे मैंने प्लस कर दिया। सो जो मेरे पास टीबी है यहां से, टीबी विल बी इक्वल टू रूट अंडर A1 इंटू टी डिवाइड बाय रूट अंडर A1 माइनस A2, सॉरी रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2, कॉलिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 4। टीबी की वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां डाल दूंगा, मैं देखता हूं क्या होता है। v जो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2। अब टीबी के बदले क्या है, रूट अंडर A1 इंटू टी डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 माइनस A2, सॉरी रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2, माइनस आएगा हमारे पास A1 इंटू टी। फिजिक्स आज खुशी हम बाकी छो मैथमेटिक्स। देखो जी, v मेरे पास आएगा बराबर, दिस इज A1 माइनस A2, मैं इसको लिख सकता हूं A1 को रूट अंडर A1 का स्क्वायर माइनस A2 को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर A2 का स्क्वायर डिवाइडेड रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2, अपना है इसके साथ रूट अंडर A1 इंटू टी माइनस है A1 इंटू टी, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता हूं, तो यू कंफ्यूज, माइनस A1 इंटू टी। देखो जी, यहां पे फॉर्मूला बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यानी कि v विल बी इक्वल टू a के बदले A1, b के बदले A2, ठीक है। मैं यहां से लिखता हूं, सॉरी a के बदले रूट अंडर A1, b के बदले रूट अंडर A2, a प्लस b यानी कि रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2
into root under a1 minus root under a2, a plus b into a minus b divided by root under a1 minus root under a2, इसके साथ अपना जो है दैट इज रूट अंडर a1 into t माइनस है अपना a1 into t, रूट अंडर a1 minus a2, रूट अंडर a1 minus a2 कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा v इज इक्वल रूट अंडर a1 प्लस रूट अंडर a2, बाहर है हमारे पास रूट अंडर a1 इंटू टी, माइनस बचेगा a1 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर a1 दैट इज a1 इंटू टी प्लस रूट अंडर a2 रूट अंडर a1 इंटू टी माइनस a1 इंटू टी, a1 t स्टैंड कैंसल, सो मेरे पास जो v बचेगा फाइनली, v जो मेरे पास आएगा v विल बी इक्वल टू रूट अंडर a1 a2 इंटू टी, टी बाहर, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आ चुकी है प्रॉब्लम नीट में, सॉरी जेई में, नीट में आ सकती है, पूछी जा सकती है, लेंथी प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, तो लेंथी ही है एक तरह से। आप इन प्रॉब्लम्स को देखो अच्छे से। मैं आज मैकेनिक्स जो आपका टॉपिक है मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज में आज क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी ऑप्टिक्स पे, रे ऑप्टिक्स पे 10th लेवल से स्टार्ट करेंगे हम और आगे आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप लोग थ्योरी को देख लो अच्छी तरह से, मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको कहीं कहीं आइडिया दूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा थ्योरी में, मैं न्यूमेरिकल्स पे ही कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि नीट वाले बोल रहे हैं कि सर लास्ट ईयर ऑप्टिक्स से 6 क्वेश्चन गए थे, तो आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट। बाकी इन वीडियोस को आप शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सके मैक्सिमाइज करो इनका रीच, सो दैट एवरीबॉडी कुड टेक एडवांटेज ऑफ दीज कंप्रेहेंसिव सॉल्यूशंस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, कीप वॉचिंग।